اعظم نریندر مودی سن کشیر دور پگہ دورس حوالہ سیکورٹی ہند سخت انتظامات بخش سٹیڈیم سری نگرس مز کرن عوامی جلسس خطاب کہیان ترقیتی پروجیکٹن ہند تہ کرن افتتاح ٹریفک پولیس طرف تاز ایڈوائزری جاری لکن ٹریفک ایڈوائزری پہ سختی سان عمل کرنے کی ہدایت ریلی میں 2 لاکھ کھت زیادہ لوکن شرکت متوقع رویندر رینا سن بیان غلام نبی آزاد سن کانگریس پارٹی پہ تنقید کانگریس پارٹی من چھن سینئر لیڈرن قدر کرنے ادھمپور ڈوڈا خطر جی ایم سروری سن اعلان تو پیش خبرن تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی عیدوے پگہ 7 مارچ وادی دور کرن تک دورس حوالہ سیکورٹی ہند سخت انتظامات کرنا آمد تو سری نگرس اندر پریت جائے سیکورٹی فورسک ناک قائم کرنا آمد وزیر اعظم نریندر مودی عیدوے بخش سٹیڈیم سری نگرس مز عوامی جلسس خطاب تہ کرن تک سٹیڈیمس اند پک سیکورٹی ہند خاص انتظامات کرنا آمد یل زن جہلمس اند پک میرین کمانڈوز تہ تعینات کرنا آمد یہ کت بیان لگ وزیر اعظم کرن دورس دوران جموں کشیر خاطر 5,000 کروڑ کھت زیادہ ترقیتی پروجیکٹن ہند اعلان یہ وزیر اعظم سندس دورس حوالہ ٹریفک پولیس طرف تاز ایڈوائزری جاری کرنا آمد تو لوکن پہ زور دن آمد تم گھن ٹریفک ایڈوائزری پہ عمل کریں یت تمن کن قسمک مشکل ویترن پین یل زن CBSE طالب علمن ون آمد تم گھن رول نمبر سلپ تو ایڈمٹ کارڈ ست تھوین اس تہد پاس تسلیم کرنے یل زن ایمرجنسی خاطر ٹریفک پولیس طرف ہیلپ لائن نمبر تہ جاری کرنا آمد ریلی پگہ ات مزن کی ٹریفک ڈائیورجنز دتمت یت مزن ایڈوائزری ایشو کرم سو کر شیئر تہ سن یت مزن سپیسفائی کورمت کہ اگر کنس نفرس اکہ جائے پہ دم جائے گھن سہ کت کن گھت تیز کھانا روٹ تیت یت پہ پگہ ٹریفک پکہ کہین پرٹیکولر تم روٹ یت پہ پگہ ٹریفک پکہ سہ جہانگیر چوک پہ رام باغ سولینا روڈ یت فلائی اوور تہ پہ فلائی اوورس پہ یا فلائی اوورس تل کنت پکہ نارمل ٹریفک پگہ کہین ات پہ پکان تمے گاڑی یمن پاس یا آتھرائز گاڑی اپر گژھان یتھے کن تمس ریڈیو کشمیر پہ یا راج باغ روٹ راج باغ پہ LD سائڈ روٹ تلسی باغ تانت ات پہ تہ پکہ نارمل ٹریفک پگہ کہین اپر اگر کنس پکن سوئی یا سیکورٹی فورس گاڑی یا سہ نفر یمس انویٹیشن ات مز دم تریم روٹ سہ گپکا روڈ ہوٹل للت پہ گول چکری تان یت ونان رامنشی باغ ات روٹس پہ تہ پگہ گاڑی پکان کی ات پہ پکان صرف تمے گاڑی یمن آتھرائزیشن ات روٹس پہ پکنچ یت پہ آئی صاحبن تہ وون بہ کر گزارش لکن کہ ات پرٹیکولر روٹ ات پہ گھس پگہ کوشش کریں اپر پکنس کی تیز اپر آسن ریسٹرکشنز تکلیف گژھِ اپر پکنس اتہ رکاون تہ چیکنگ گژھِ بہتر کہ اگر یم روٹ ایوائڈ کرن اخ سہ دم اگر میڈیکل ایمرجنسیز آسن تو میڈیکل ایمرجنسی کرو فیسلٹیٹ کرو ساروی کھۄتہٕ شارٹیسٹ روٹ تپٲرۍ کرو تم فیسلٹیٹڈ میڈیکل ایمرجنسی تکیاز ہاسپٹل کٲنٛسہِ آسان گژھُن یا بیٚیہِ کینٛہہ ایمرجنسی تم کرو فیسلٹیٹ پگہ اکھ سپیسفک تکیاز پگہ امتحان CBSE پگہ سوشل سائنس تمہ خٲطرٕ یم تہِ سٹوڈنٹن یمن گژھُن ایگزامنیشن سینٹرن پہ تمن سۭتۍ تمن سٹوڈنٹ تہٕ بیٚیہِ تمن پیرنٹس گزارش کرنہٕ کہ تم تھاون ویلڈ ID کارڈ بے رول نمبر سلپ بچہ سند تو ایگزامنیشن بائی اراؤنڈ 11 مگر گزارش کران کہ تھی روزو 8 بجے برونٹ اگر ایگزامنیشن سینٹرن پہ واتان تیز اگر تھی ژیر درائیو گھر پہ یہ جموں کشمیر BJP پارٹی صدر رویندر رینا سند طرف ون آمد وزیر اعظم نریندر مودی سندس دورس حوالہ لکن اندر جوش و خروش وچھنے تو لوگ بے صبری سان وزیر اعظم نریندر مودی شاندار استقبال کرنے خاطر تیار تم وون بخش سٹیڈیم سری نگرس من 2 لاکھ کھت زیادہ لوکن شرکت متوقع تو یم بابت تمام تیاریاں مکمل کرنا آمژ رویندر رینان وون ام علاوہ 765 بلاکن من بخش سٹیڈیم تقریب لائیو تہ نشر کرنا صبری سے وادی کشمیر کے لوگ پرائم منسٹر
नरेंद्र मोदी साहब का इंतजार कर रहे हैं। वादी कश्मीर के लोग दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मोहब्बत करते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी दिल से वादी कश्मीर की आवाम से मोहब्बत करते हैं और यही वजह है कि आज पूरे कश्मीर के अंदर जबरदस्त जोश मोदी साहब की रैली को लेकर है। लोग बड़ी बेसब्री से मोदी साहब के इस्तकबाल के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के वेलकम के लिए तैयार हैं। मैं देख रहा हूं पूरे कश्मीर में, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर है, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा हो, या सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर, गांदरबल, बड़गाम हो, या फिर साउथ कश्मीर में पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान हो, पूरे कश्मीर के अंदर इस वक्त जबरदस्त मोदी साहब के इस्तकबाल की तैयारियां हैं। लोग मोदी साहब का इस्तकबाल दिल से करेंगे और उनके दीदार करना चाहते हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि 2 लाख से भी ज्यादा लोग 7 मार्च को कश्मीर के उम्मीदवारों हुंद ऐलान करना आमुद तो DPAP पार्टी हिंद सरबराह गुलाम नबी आजाद सिंह तरफ उधमपुर डोडा पार्लिमानी नशस्त खतर GM सुरूरी सुंद ऐलान करना आमुद। गुलाम नबी आजाद सिंह तरफ वस्त कशीर बडगामिस मज अहम ऐलान करना आमुद। तमो अत मौके पे कांग्रेस पार्टी हज तनकीद करान वोनमुत कांग्रेस पार्टी मज सीनियर लीडरन कदरी करने यवान। DPAP पार्टी तरफ आज त्रार शरीफ बडगामिस मज अवामी जलसुक सज करना आमुद, यथ मज पार्टी लीडरों अलावा वर्करन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हालस हवाल कथन दाल दिना तो वर्करन पे जोर दिन आमुद तम गसन पार्टी खतर चुकसान काम करें युथ बाकी लुक ते पार्टी मज शामिल सपदन। मुल्लाओं का चक्कर छोड़ो, टैर के दरिया बिल्डिंग रोए। उधमपुर जम्मू में मेरा इरादा है, बाकियों से भी करेंगे। GM सुरूरी साहब हमारी पार्टी के सबसे सीनियर आदमी हैं और वाइस चेयरमैन भी है मेरी पार्टी। 4 दफ़े MLA रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और बहुत एक्टिव हैं। मैं अपने आप को एक्टिव समझता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव। तो मैं समझता हूँ कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब सबसे मौजूद कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन अभी हमने कतई फैसला नहीं किया है। लेकिन उस पर 0 ऑन हम कहते हैं ना, घूम फिर के मैं उसी पर पहुंच रहा हूँ। लीडरशिप प्रोवाइड करने में नाकाम हूँ, खैर मैं किसी में भागा नहीं, मैंने अपनी पार्टी में और जो वहाँ कमियां थी वो कमियां दूर करने की कोशिश की। बुनियादी कमी थी कि वर्क कल्चर की और रिस्पेक्ट नहीं थी इसे एल्डर्स की। मैं अभी देख रहा था कि भोपाल में कांग्रेस लीडर ने वहाँ के जो 2 टर्म चीफ मिनिस्टर हैं, 2 टर्म PCC प्रेसिडेंट हैं, 2 टर्म CLP लीडर हैं और 10-12 टर्म MLA में जनूबी कशीर जिला अनंतनाग कोकरनाग के रेड वालों तरफ म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग के खिलाफ खामोश एहतजाज करना आमुद। एहतजाज में शामिल लुको तरफ वन आमुद यथ जाय तम वरी वाद पे कम करान तम तम जाय नश मुंतकिल करने यम किन तिहुंद रोजगार मुतासर सपदन खतरे। तमो अहवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गज जोन युन दिन युथ न तिहुंद रोजगार मुतासर सपद। कोकरनाग रोजान वोल मैं महमूद भट नाव बहुत सिक्रेट वेंडर कोकरनागस मज पन रेट चलान। हफ्त ब्रोट गो ये वाक़ा यह योड़ा एडमिनिस्ट्रेशन आई यह EO टाउनस EO एग्जीक्यूटिव अफसर तमो आए तमो नी रेड थोद तुलित ना पता वजह क्या तो तमो आए योर तमो नी छोड़ पोड़ कर तमो सोरे सामान वामान वटित मे गए सारे पटरी क्या सोन इस गुजार सह ऑन द बेसिस ऑफ पटर पे पन रोजगार चलान पचमो 15 वरियन पे लागान रेड यह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नबर कन रेड लागान पन रोजगार बे कर मोदी जी बड़ शुक्र गुजार तम कर स्कीम सान खतर लोन दिख बे दिख परमिशन यह
लास्ट में अच्छा लास्ट बे वुद्रहस तुलिक चलन सहियान रहायशी मकान स्कूलन तो मस्जिद पाकस नुकसान वोतमुत यम किन लुकन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान तमो अमे वाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन युन दिन तो तिहज बाजाबात करी तो तिमन मुआवजा फराम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। जनाब मेरा नाम एजाज अहमद सोहिल है। हालात ऐसे बने हुए हैं जनाब, पिछले साल से ये डैमेज एरिया है। आपने भी बड़ी सारी रिपोर्टिंग यहाँ की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्तन फ़वक्तन जब भी कोई ऐसे कोई किसी भी प्रॉब्लम में यहाँ की आवाम या यहाँ का कोई भी बंदा होता तो आप उसकी मदद के लिए शान आ जाते हैं, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मसला ये है जनाब, अगर आप आपने यहाँ पे पहले भी रिपोर्टिंग की है, ये जो पिछले साल तहसीलदार साहब और ये डीसी साहब और तहसीलदार साहब ने इसको रेड जोन करार दिया यहाँ पे जी। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा खतरा था, तो उस वक्त उन्होंने इसको रेड जोन करार दिया, कहा आप यहाँ से मुंतकिल हो जाओ, मगर हम जाएंगे कहाँ? पिछले साल से वो यही बोल रहे हैं। तो अब मसला यहाँ तक पहुँच गया, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, आप कैमरा आप ऊपर घुमाओ, आप हालात देखो इस वक्त क्या बनी है। ज़मीन पूरी कट के रोड में आ गई है, स्कूल पूरा डैमेज होकर यहाँ रोड में आ रहा है, मस्जिद पूरी डैमेज होकर रोड में आ रही है, महला पूरा डैमेज होकर रोड में आ रहा है, इस साइड का जो पूरा महला है पूरा डैमेज होकर रोड में आ रहा है, दुकानें 2-3 मलबे के नीचे चलेगी जी। नुकसान खुद भी देख रहे हो आप, और पहले भी जो एचएम साहब आए उसने भी देखा था, लेकिन जब उनकी जो उस वक्त फाइलें बनाई उनका कोई नतीजा नहीं निकला, क्या किया क्या नहीं किया। और आज जो पूरा गांव जो है ये मातम में रहता है, जब भी बारिश होती है हम नहीं ये सोते हैं, हम बिल्कुल बैठ के रहते हैं। लेकिन आज भी जो नायब साहब आए ये भी देख के गए, फिर हमें वो उम्मीद है कि आज जो नायब साहब आए शुमाली जिल बारामूला मज आवाज जिल तरक्याती कमिश्नर बारामूला तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला सिंध तरफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इफ्तिताह करने यथ मज तलीमी इदारन सहित वाबस्ता कुको शिरकत कर। अत मौके पे तिमन साफ सफाई तो रन सवाल मुकम्मल तरबियत दिन आए, तब तिमन पे जोर दिन आमद से तिम गसन खेन चनस दौरान साफ सफाई हुंद खास ख्याल थावन। अच्छा से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और मैं बस आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में जो हमारे पीएम पोषण के तहत जो कुक्स अपॉइंट हुए हैं स्कूल्स में, जो बेसिकली मिड डे मील बना के हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं क्लास 1 से 8 के, उनकी स्किल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग थी। तो ये ट्रेनिंग इन्होंने एक प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज की, उसके साथ कैसे हाइजीनिक वे में खाना पकाया जाए वो, साथ ही साथ हम लोगों को मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन सबको एक किट भी दिया जाएगा जिसमें यूटेंसिल्स नाइफ्स वगैरह वो सब प्रदान किए जाएंगे, सो दैट वो जो अपना काम वो बखूबी निभा पाए। तो ऐसा जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे कुक्स हैं, नॉर्मली आप देखेंगे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है ना, हमारे कई सारे लेवल्स की एजुकेशन में बहुत रेगुलरली ट्रेनिंग होती है, पर कुक्स की ट्रेनिंग बहुत रेयरली होती है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे सीईओ ऑफिस ने ये इनिशिएटिव लेके जो स्पेशली मिड डे मील के कुक्स हैं, जो एक बड़ा ही इग्नोर्ड सा तबका था, उसकी भी आज ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की। आप देख रहे हैं सारे बड़े एंथुजियास्टिक लिया, क्योंकि आई थिंक पहली बार मैंने अपनी सर्विस लाइफ में तो पहली बार सुना है कि मिड डे मील के कुक्स का ट्रेनिंग हो रहा है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि उनकी अच्छे से ट्रेनिंग हो रही है, उनसे उनके वो भी उनको सीखने को मिलता है कि कैसे क्या करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस ट्रेनिंग के थ्रू वो स्किल्ड रहेंगे, अप स्किल होंगे, और हमारे बच्चों को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको एक बेहतर डाइट और एक हाइजीनिक तरीके से खाना पहुंचा पाएंगे। नहीं, ज़रूर करेंगे, पर क्योंकि जैसा आपको पता है कि जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो एक लोकेशन का भी इशू होता है, पर क्योंकि बारामूला टाउन पर से सेंट्रल पड़ता है, पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीईओ साहब की कि फर्दर ट्रेनिंग्स भी ऐसे जो स्पेशली डिस्पर्स जैसे उड़ी में हो। जी कशीर जिल पुलवम खूबसूरत बनाना हवाले जिला इंतजामिया तरफ कहिया इकदाम तुलने तवारीखी दोबी कोल पे तजावजात खत्म करने की कोशिश जारी, युथ कोल अंद पे गैर कानूनी तजावजात खत्म करने यी। तमें हवाले मुकामी लोगों ये इकदाम तुलनस पे जिला इंतजामिया शुक्रिया अदा कोरमुत। जो ये दोबी कॉल का मसला था, ये पिछले तकरीबन 20 सालों से हम सुनते आ रहे थे कि दोबी कॉल पे काम शुरू होगा, लेकिन जो हमारे ऑनरेबल डीसी साहब डॉक्टर बशारत कोयम साहब ने इस पे एक अगरचे 200 या 300 फुट पे काम किया था लास्ट टाइम, लेकिन जो लास्ट टाइम पिछले महीने यहाँ पे पब्लिक दरबार हुआ था तो ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा को भी उसमें डीसी साहब ने इनवाइट किया था। तो हमने बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पे रेज़ किए थे, लेकिन हमने एक जो जिस पे ज़्यादा हमने फोकस किया था वो ये इसी दोबी कॉल पे फोकस किया था। तो उस वक्त
ऑनरेबल डीसी साहब ने वो मसला नोट किया था वहाँ पे, और तकरीबन 1 महीने के बाद इस पे एक जो मेजर पार्ट बचा हुआ था उस पे काम शुरू हुआ है। तो नाज़रीन कोशर खबरनामा यतन सयान 9 बजे सब्द बे मुलाकात, फिलहाल दियो इजाज़त, खुदा सवाल।